अगर मेरे को R साढ़े को इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी है, सो दिस इज let R is integral domain with the unity, so that is a given part. So next topic, the next definition is R is integral domain with the unity. So a polynomial f over R of positive degree, so it is of positive degree, is said to be irreducible polynomial over R. So पहला असी irreducible element डिस्कस कीते सीगे, हुण असी irreducible polynomial डिस्कस करन जा रहे हैं. सो दोनों च फर्क है, दोनों दे विच फर्क है. सो इत्थे असी डिस्कस करन जा रहे हैं irreducible polynomial. तो कोई भी polynomial irreducible कदों हुंदी है? अगर उन्होंने आपां cannot expressed as the product of other two polynomial of positive degree. अगर असी उन्होंने दो पॉजिटिव डिग्री दी प्रोडक्ट दी पॉलिनोमियल च एक्सप्रैस नहीं कर सकते तो असी उन्होंने कहने इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल. और अगर उन्होंने आपां लिख सकीए तो उस केस च असी उन्होंने कहांगे रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल. तो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल अगर इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं है तो वो साडे को रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज इट इज ए इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल जे आपां इहदे नाल रिलेटेड किसी क्वेश्चन की गल करिए, मान लो असी एक पॉलिनोमियल ले ली x² + 1. हुण इस पॉलिनोमियल मैं फैक्टराइज कर सकदा x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा, राइट. तो अगर मैं इनू z दे विच डिस्कस करा, सो z दे विच असी इनू रिड्यूस नहीं कर रहे. सो दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर z. सो दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर z क्योंकि इनू असी उन्हां दो पॉलिनोमियल च फैक्टराइज नहीं कर पा रहे जिन्हां दे रूट्स जां जिहड़ियां पॉलिनोमियल जिहड़ियां वो z दे उत्ते एग्जिस्ट करन. बट असी इहनूं रिड्यूस कर रहे हैं किन्हां दे विच, उन्हां पॉलिनोमियल च जिहड़ी कंपलैक्स नंबर दे उत्ते होण. सो इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज irreducible over z, but it is reducible over c. So that is the difference. So remember that. Similarly, if I write x² minus 1, so this polynomial can be written as x minus 1 into x plus 1. So this polynomial is reducible over z. So this is reducible over z because we can factorize over z. Now, if I write x² minus 2, so this can be factorized as x minus √2 into x plus √2. So this polynomial is also irreducible over z, but it is reducible over q. तो z दे उत्ते तां इह साडे कोल irreducible हो गई, पर reducible किहदे उत्ते होई? q दे उत्ते, which is a set of rational number. तो q दे उत्ते साडे कोल इह reducible हो गई. So this is very important result. Now उस तो अगे असी फर्स्ट थ्योरम नु डिस्कस करन जा रहे हैं. So what is the statement of the first theorem? So statement of the first theorem is if R is integral domain with unity. So unity दी गल असी जरूर कर रहे हैं, याद रखना. Then the units of R and Rx are the same. मतलब R दे यूनिट तो साडे कोल पॉलिनोमियल दे यूनिट ये साडे कोल सेम होणगे. सो इस पहला थ्योरम नूं असीं डिस्कस करांगे. उस तो बाद असीं करांगे अगर साडे कोल R UFD है तो किसी भी पॉलिनोमियल नूं असीं इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल नूं
ਜਾਂ ਇਰੋਡਿਊਸਿਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਰੋਡਿਊਸਿਬਲ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ, this r, so what is this? It is an integral domain with unity. It is a integral domain with unity. So इस चीज ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ r ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ rx ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ I take this A which belongs to R, कोई एलिमेंट R च ले लिया और ये R दे एलिमेंट साडे कोल कौन है? सो इट इज ए यूनिट। असी प्रूव करना it is a also unit of Rx. So by definition there exists some B belongs to R such that this AB is equal to 1। मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਵਰਟੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ए बी ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਾਓ I define a polynomial f of x which is equal to, this can be written as a plus 0x plus 0x square and 0x cube and so on up to 0 0 0। So this polynomial is belongs to R of x। क्यों R of x ਨੂੰ belong करती है? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A element है it belongs to R, 0 belongs to R, this 0 belongs to R। तो मतलब कहना coefficient ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ R ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ और G of x ਨੂੰ मैं construct कर लिया B plus 0x plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0x square plus so on and it again belongs to Rx by same line of action। ਹੁਣ देखिए कि अगर मैं fx ਤੇ gx ਦਾ प्रोडक्ट करा सो ਇਹ ਕੀ ਹੈ? बेसिकली ab है और ab ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਾ? 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ so what we get this fx is unit। unit mean invertible पर किहदे विच? in R of x ਦੇ ਵਿੱਚ। so this polynomial is unit in R of x। clear हो गया जी? so it implies fx कौन सी? basically the a सी। so a is unit in Rx, in Rx। so it means अगर मैं R ਦਾ unit लिया तो वो साढ़े को R of x ਦਾ भी यूनिट बन जाएगा। सो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। हुण कन्वर्स पार्ट। सो कन्वर्स पार्ट दे विच असी की करांगे? सो मैं पहला तो कलर चेंज करदा, ठीक है जी। सो दिस इज ए कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली, ठीक है जी। नाउ कन्वर्स दे विच असी प्रूव करना, मान लो fx belongs to rx, r polynomial, be a unit। ये साढ़े को यूनिट आ गया, ठीक है जी। ये यूनिट आ गया तो डेफिनेशन यूज कर रही है, देयर एग्जिस्ट g of x belongs to r of x such that f of x into g of x is equal to 1। ठीक है जी। तो इन्वर्टेबल दी असी डेफिनेशन यूज करती। नाउ इट implies degree of f and g, ठीक है जी, which is equal to degree of constant term। तो 1 दी डिग्री कितनी हुंदी? 0। so it implies degree of f and g। so this can be written as degree of f plus degree of g। so this term is equal to 0 और दोनों साढ़े कोल पॉजिटिव टर्म्स है।
जे पॉजिटिव टर्म्स है तो साडे कोल एफ वी डिग्री ऑफ एफ वी साडे कोल 0 होएगी एंड डिग्री ऑफ जी वी साडे कोल 0 होएगी। और डिग्री 0 कदों हुंदी जदों साडे कोल पॉलीनोमियल किदां दी होवे, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल होवे। जे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल होवे सो इट implies this f can be written as some element a0 and this g can be written as b0 or a0 b0, these are some non-zero element of R। ये साढ़े कोल ये भी नॉन जीरो और दिस एलिमेंट भी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R है। अगर साढ़े कोल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R आ गए तो सानू पता एफ जी किहदे बराबर सानू दिता 1 दे बराबर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू a0 b0। सो व्हाट इट मीन्स a0 इज यूनिट और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कह सकते हैं यूनिट इन R क्योंकि ये R का एलिमेंट है। तो a0 कौन सी f सी, सो इट मीन्स f is a unit in R। so from this what we conclude, so here we conclude that कि ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੇ यूनिट है ਉਹੀ यूनिट RX ਦੇ ਹੋਣਗੇ और ਜਿਹੜੇ यूनिट ਸਾਡੇ ਕੋਲ RX ਦੇ ਹੈ ਉਹੀ यूनिट ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। वो एग्जाम्पल क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, शो दैट एग्जाम्पल इज शो दैट 2x plus 1 एक पॉलिनोमियल है और दिस पॉलिनोमियल इज ए यूनिट इन इहदे z कंग्रुएंट मॉड्यूलो 4 ऑफ x। तो सानू पता ये एलिमेंट किदां दे होणगे 0 1 2 3 टाइप, ठीक है जी। तो असी ये पॉलिनोमियल साडे कोल आ गई और असी ये प्रूव करना कि दिस इज ए यूनिट। लो जी, यूनिट मीन कोई होर पॉलिनोमियल है ये विच ही जिहड़ा कि साडे कोल इनू इनवर्टेबल करता। सो आई राइट 2x plus 1, दूजी पॉलिनोमियल भी मैं 2x plus 1 ले ली, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर प्लस साढ़े को 2x plus 2x 4x, फिर आ गया साढ़े को दिस इज 1 into 1, दिस इज 1। इस पॉलिनोमियल नू आपां किहदे विच स्टडी कर रहे हैं, Z4 दे विच, ठीक है जी। सो यदि इंटैग्रल डोमेन Z4 है, जेदी इंटैग्रल डोमेन Z4 है, ਇਹਦਾ मतलब 4 ਜਿਹੜਾ है it is equivalent to 0, this 4 is again equivalent to 0, so this is a 0x square plus 0x plus 1 and this value is equal to 1। so what it means 2x plus 1 into 2x plus 1 which is equal to 1। so what it means 2x plus 1 is a unit। ये साढ़े को यूनिट आ गया पर किहदे च Z4 of x दे विच ये साढ़े को यूनिट बन गया, ठीक है जी। सो इस ढंग दे नाल असी इनू डिस्कस करना कि साढ़े कोल यह यूनिट बन जाता। उस तो नैक्सट थ्योरम की आपां गल कर रहे सीगे। सो नैक्सट साढ़े कोल जिहड़ा रिजल्ट है वो क्या है। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट थ्योरम, सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। अगर मेरे कोल सब तो पहली गल, सो दिस R which is a
एफ डी। ठीक है जी। सो यदि स्टेटमेंट में ऊपर भी लिखी हुई है। सो आर सब तो पहला यू एफ डी है। तो अगर एनी पॉलीनोमियल असी एफ आर एक्स दे विचों कोई भी पॉलीनोमियल लेने, ठीक है जी, और ये पॉलीनोमियल क्या है, इज एन irreducible एलिमेंट, ठीक है जी, किहदे विच आर ऑफ एक्स च irreducible एलिमेंट, इफ एंड ओनली इफ जा तां एफ साडे कोल irreducible एलिमेंट इन आर एक्स है, जा तां एफ irreducible एलिमेंट होएगा इन आर दे विच। सो कन्फ्यूज नहीं होना, इत्थे गल आपां आर एक्स दी कर रहे हैं, सो इत्थे गल आर दी हो रही है। सो दोनों आपस में डिफरेंट चीज़ां हैं। और जा और दिस वैल्यूज एफ इज irreducible पहला स्टेटमेंट। और नंबर 2 प्रिमिटिव बारे पता, जिदे कोएफिशिएंट साडे कोल यूनिट हो जान। सो irreducible प्रिमिटिव पॉलीनोमियल इन आर एक्स। सो इन आर एक्स, ठीक है जी। सो हुण इत्थे फिर गल आर एक्स दी हो रही है, यानी इत्थे जिहड़ी irreducible एलिमेंट सी वो की बन गया irreducible प्रिमिटिव पॉलीनोमियल। जो पॉलीनोमियल च कन्वर्ट हुई तो कला irreducible नहीं है, नाल दे नाल प्रिमिटिव पॉलीनोमियल भी हो गई, ते जा आर दा irreducible एलिमेंट ही रह गया। सो दिस स्टेटमेंट सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला तो इस गल नूं समझो कि जिहड़ी साडे कोल स्टेटमेंट है, सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लई भी। तो मैं इहदा प्रूफ करन जा रहा। सो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस वैल्यूज। सो अगर एक गल नूं समझो, अगर साडे कोल सानू इस चीज़ की समझ है कि दी डेफिनेशन दी क्लैरिटी है, तो थ्योरम नू सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी गल नहीं होती। नाउ इन अवर स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन एफ इज बिलोंग्स टू आर एक्स, ये दिता, और दिस इज ए irreducible एलिमेंट। बस इत्थे तक गल नू समझो, ठीक है जी। ये सानू irreducible एलिमेंट दिता होया है। हुण जे irreducible एलिमेंट है तो नैचुरली जिहड़ा साडे कोल आर है ये छोटा सैट है, और आर एक्स नैचुरली पॉलीनोमियल दा बड़ा सैट है। सो यानी कि दिस इज ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अगर ये पार्ट है देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज नंबर 1 कि एफ आर नू बिलोंग करेगा, ठीक है जी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 एफ आर नू बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर हो गया जी, ठीक है जी। तो एफ साडे कोल irreducible एलिमेंट है, तो मेरे को 2 पॉसिबिलिटीज आ गई कि एफ आर नू बिलोंग करेगा ते जा एफ आर नू बिलोंग नहीं करेगा। सो अगर एफ आर नू बिलोंग कर गया तो एफ कितना दा हो गया। सो एफ हो गया, रहना तो इन्हें irreducible ही है, irreducible एलिमेंट, ठीक है जी। पर क्योंकि आर नू बिलोंग कर गया तो इट इज ए irreducible एलिमेंट इन आर हो गया। तो मेरा एक पार्ट जिहड़ा है वो प्रूव हो गया कि ये आर दा irreducible एलिमेंट है। हुण आपां दूजे केस नू स्टडी करिए, जिहड़ा साडे कोल अगला केस है। पहला केस असी सॉल्व कर लिया। नाउ इन दिस केस एफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब
ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ f ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ g into h ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਦਿਸ ਫॉर g ਤੇ h these are polynomial in Rx, remember that, ये तो मैं लिख ही सकता, ठीक है जी। सो f ਨੂੰ मैं gh ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ for gh belongs to Rx। ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्या है कि ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਗੀ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ g ਦੀ ਵੀ ਤੇ h ਦੀ ਵੀ greater than 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਾਓ f ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ gh ਫਾਰਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ rx ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ ਔਰ f ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ r ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ f ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ f ਦਿੱਤਾ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਐਲੀਮੈਂਟ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਦਰ g or h is unit, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਣਗੇ? in Rx, क्योंकि ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट Rx च दिता है, ठीक है। तो सानू पता है हुणे करके हटे Rx दे ते R दे यूनिट सेम हुंदे, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब G ਜਾਂ H अगर यूनिट है Rx च, सो इनू असी लिख सकते हैं either G or H is unit in R। तो इत्थे मैं उस थ्योरम की प्रॉपर्टी लाती और ओदी स्टेटमेंट मैं इत्थे लिखूंगा साइड दे उत्ते। की लिखूंगा कि R दे यूनिट और Rx दे यूनिट ये सेम हुंदे आ। जे सेम हुंदे आ तो जे G Rx दा यूनिट आ, H Rx दा यूनिट आ, तो G H R दे भी यूनिट होणगे। समझा गई गल? हुण विजुअलाइज करो R दे यूनिट। R दे यूनिट तुहानू किदां दे होणगे? कांस्टेंट टाइप। कांस्टेंट टाइप मतलब जिन्हां दी डिग्री 0 हुंदी है। सो इट मीनस डिग्री ऑफ G या तो 0 होएगी या साडे कोल डिग्री ऑफ H 0 होएगी, ठीक है जी। तो इनू आ पॉलीनोमियल नू आपां रिड्यूस नहीं कर पाए। रिड्यूस कदों हुंदा? जब एक दी डिग्री ग्रेटर दैन 0 हुंदी, दोनों दी डिग्री ग्रेटर दैन 0 हुंदी तां असीं इनू रिड्यूस कर पाना सी। सो इट मीनस जिहड़ी पॉलीनोमियल दी आपां गल कर रहे हां, ये पॉलीनोमियल साडे कोल किदां दी हो गई? इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल हो गई। एलीमेंट सी, एलीमेंट तो असी पॉलीनोमियल वाल नू वध गए in Rx। So this is an irreducible polynomial in Rx। पर असी प्रूव की करना? असी प्रूव करना कि it should be primitive। primitive भी होनी चाहिए। हुण irreducible तो हो गई, पर इहदे नाल नाल असी ये भी तो प्रूव करना चाहते हैं कि ये पॉलीनोमियल प्रिमिटिव भी होनी चाहिए है। सो वो किद्दां प्रूव करांगे? असी एक रिजल्ट कीता सी कि अगर साडे कोल कोई भी पॉलीनोमियल है, ठीक है, उस पॉलीनोमियल नू मैं एक्सप्रैस कर सकदा d इंटू f1। d की है? एलिमेंट ऑफ R है, और f1 की है? इट इज ए प्रिमिटिव पॉलीनोमियल। सो दिस इज ए प्रिमिटिव पॉलीनोमियल जिहदा कंटेंट की हुंदा इटसेल्फ, ठीक है जी। तो मैं इनू इस ढंग दे नाल एक्सप्रैस कर सकदा, क्योंकि सानू पता जिहड़ा d है कांस्टेंट टर्म आ, इहदा मतलब f1 ते f दी डिग्री सेम होएगी।
तो जिन्नी डिग्री एफ की है उन्नी F1 की होएगी। सो इट मीनस डिग्री ऑफ F1 ते डिग्री ऑफ F दे शुड बी सेम, ठीक है जी। दोनों की डिग्री साढ़े को सेम होएगी। और डिग्री ऑफ F की दी सानू पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0। जे ग्रेटर दैन 0 हो गई दैन इट मीनस F साढ़े कोल दिस पॉलिनोमियल इज इररेड्यूसिबल। F दिता ना इररेड्यूसिबल, और इररेड्यूसिबल के मुताबिक या पहला यूनिट होना चाहिए या दूजा यूनिट होना चाहिए। सो डिग्री ऑफ F1 का यूनिट नहीं होया, क्यों? क्योंकि साढ़े कोल दिस वैल्यूज जिहड़ा साढ़े कोल F1 है यदी डिग्री ग्रेटर दैन 0 आ, इसका मतलब ये यूनिट नहीं होएगा। तो यूनिट कौन होएगा? D यूनिट होएगा। सो इट इंप्लाइज D इज यूनिट, ठीक है जी। सो थोड़ा जहा ट्रिकी है, मैं रिपीट कर देना। F नूं असीं इदां एक्सप्रैस करता D इंटू F1, और सानू F किदां दा दिता? इररेड्यूसिबल दिता। एलिमेंट भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अगर इररेड्यूसिबल एलिमेंट है तो आइदर आ यूनिट होएगा या आ यूनिट होएगा, ठीक है। F1 दी डिग्री F दे बराबर आ, सो इट इज ग्रेटर दैन 0। तो ये तो यूनिट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूनिट दी डिग्री तो साढ़े कोल कांस्टेंट टाइप होएगा। तो अगर ये यूनिट नहीं हो सकता तो नेचुरली दूजा एलिमेंट यूनिट होएगा। तो दूजा एलिमेंट कौन यूनिट हो गया? D यूनिट हो गया। सो अगर D यूनिट मेरे को बन गया तो यदा मतलब मैं F नू एक्सप्रैस किया D इंटू F1, ठीक है जी। और D मेरे को की आ गया? यूनिट आ गया। सो F मेरे को कितना दी हो गई? प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गई। सो दिस इज ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। जे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गई क्योंकि ये यूनिट बन गया, तो F का जिहड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यूनिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि F1 का तो ऑलरेडी यूनिट आ, नाल यूनिट होर मल्टीप्लाई हो गया तो भी यूनिट ही रहा। सो अगर यूनिट हो गया then it means F is a primitive polynomial। तो इनू आपां अपने माइंड च रखना कि अगर साडे कोल F इररेड्यूसिबल एलिमेंट है तो साडे कोल दो पॉसिबल इररेड्यूसिबल एलिमेंट Rx दा है, then we have the two possibilities। या तो वो सेम प्रॉपर्टी R से सैटिस्फाई करेगा या वो प्रिमिटिव इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल किहदे विच हो जाएगा? Rx दे विच हो जाएगा, ठीक है जी। सो इस चीज़ नूं आपां बड़े चंगी तरह ध्यान नाल समझना। लो जी, अगर मेरे कोल डेफिनेशंस क्लियर हो गई तो कुछ मैं फंडामेंटल कंसेप्ट समझने की कोशिश करूँगा। क्या है? R साडे कोल वही है इंटैग्रल डोमेन, विद यूनिटी भी कह लो, विदाउट भी कह लो। चलो फिलहाल आप जी साढ़े को है वो विद इंटैग्रल डोमेन कह लें। और के मैं ले ली, व्हाट इज दिस? इट इज ए फील्ड ऑफ क्वोशिएंट, फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ R। सो के मैं ले लिया फील्ड ऑफ क्वोशिएंट। तो तुहानू पता के दे एलीमेंट किदां दे हुंदे आ? सो के दे एलीमेंट इस टाइप दे हुंदे आ, A बटा B टाइप। A B बिलोंग करनगे R। A जिहड़ा साडे कोल B आ वो नॉन जीरो होएगा। सो ये फील्ड ऑफ क्वोशिएंट आपां पिछे चैप्टर च पढ़ चुके हैं, उन्होंने मैं रिवाइज करता भी के दी वैल्यूज ये बराबर होंगी। सो अपने माइंड दे विच इनू रखना। अगर मैं मान लो कोई भी पॉलिनोमियल के दे उत्ते ले रहा, अगर मैं कोई कंसिडर कर ली नॉन जीरो पॉलिनोमियल, कंसिडर ए नॉन जीरो जीरो पॉलिनोमियल। ये याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल नहीं लेनी है। सो नॉन जीरो पॉलिनोमियल
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ मैं f, ਲੈ ਲਿਆ। सो f ਦੇ एलिमेंट कितना दे हो गए a0 प्लस a1 x, कंटिन्यू करते जाओ, जिन्नी भी डिग्री लैनी जो तुहाडा मन करदा वो डिग्री लो। जे x च लैनी, चलो इनू y च लै लईए, असीं y दे विच लै लईए y दी पावर n। सो इट बिलोंग्स टू k ऑफ y। आ गई गल मेरी समझ? ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ वो k ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ k ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ तो k ਦੇ एलिमेंट किदां दे आ क्वेश्चन टाइप। तो ai ਨੂੰ मैं एक्सप्रैस कर सकदा ci बटा di फॉर एवरी I is running from 0 1 2 कित्थे तक m तक। तो मैं इनू एक्सप्रैस कर सकदा ਜਦੋਂ ਇਹ k1 ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ai ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ इट बिलोंग्स टू k ਦੇ एलिमेंट इस तरह ਦੇ ਆ। अगर इस तरह ਦੇ एलिमेंट आ तो ਉਹਨੂੰ मैं इस फॉर्म ਚ लिख सकदा। जे इस फॉर्म च लिख सकदा, सो I consider these d which is equation साडे को d which is equal to d0 d1 करते जाइए dm। सारे एलिमेंट जिहड़े साडे कोल उन्हां दा प्रोडक्ट मैं मैंशन करता। जे प्रोडक्ट ले लिया सो इट इंप्लाइज व्हाट इज d इंटू f, d नाल मल्टीप्लाई करता। तो अगर मैं d नाल मल्टीप्लाई किया तुहाडे कोल f इक्वेशन है, तो तुहाडे कोल क्या बन गया, फर्स्ट एलिमेंट da0, दूजा एलिमेंट da1 इंटू y, कंटिन्यू करते जाइए, लास्ट एलिमेंट da और नाल साडे कोल की आ गया m। सो दिस इज y रेज टू पावर m। ठीक है। सो सिंपल असी मल्टीप्लाई किया इहदे नाल d दे नाल, d की लिया सी उन्हां दा प्रोडक्ट लिया सी। हुण देखिए कि वो जिहड़ा dai आ ये की किदां दा एलिमेंट बन रहा फॉर एवरी i। आपां कल्ले कल्ले दी वैल्यूज फाइंड आउट करन नालों मैं इन जनरल लै ली d इंटू ai। सो वट इज d, dc d0 d1 कित्थे तक जाना dm और ai की सी ci बटा di। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि di वाली टर्म जिहड़ी आ वो कैंसल हो गई, ਉਹਦੀ जगह किने लै ली, उपरली टर्म ने c ने। सो दिस विल बिकम d0 d1 करते जाइए di माइनस 1 और उस तो अगली टर्म ci आ गई, फिर नेक्स्ट टर्म di प्लस 1 फिर करते जाइए। सो dm तक असी पुछ गए। सो सिंपल मल्टीप्लाई किया और ये सारे दे सारे एलिमेंट प्रोडक्ट जिहड़े आ सानू पता ये किनू बिलोंग करते हैं, आर नू बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आ तुहानू पता ना ਇਹਦਾ एलिमेंट ये एलिमेंट सारे एलिमेंट किहदे च चल गए, आर दे विच चल गए। तो तुसी की कढिया कि आ जिहड़े कोफिशिएंट तुसी तैयार कीते सी ये कोफिशिएंट किहदे च चल गए, ये आर दे विच चले गए। एक कोफिशिएंट, दिस कोफिशिएंट एंड दिस कोफिशिएंट। अगर ये आर च चल गए तो साडे कोल जिहड़ी पॉलीनोमियल है, जिहड़ी पॉलीनोमियल df ये किनू बिलोंग कर गई, इट बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स दे नू बिलोंग कर गई। समझ आ गई गल? सो आर ऑफ वाई नू बिलोंग कर गई क्योंकि वाई दे विच है ना पॉलीनोमियल। सो आर ऑफ वाई नू बिलोंग कर गई। सो मेरा मतलब कहण दा इहदे विच इह है, सानू पता फील्ड ऑफ आ साडे कोल अगर असी गल करिए दिस वैल्यूज, सो आर साडे कोल है दिस स्मॉल टर्म, ये साडे कोल सब तो छोटी चीज है। और इस तो जिहड़ा फील्ड ऑफ क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ क्वेश्चन वो साडे कोल बड़ा है। ठीक है जी।
मतलब आ साडे कोल है दिस इज आर, आ साडे कोल है के, के मीन्स फील्ड ऑफ क्यूशेंट। क्लियर? ये बड़ा है। इसका मतलब कि अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल एफ ये फील्ड ऑफ क्यूशेंट चो लेना के वाई च, तो एक मेरे को ऐसा नंबर डी है जिहड़ा आर का है, अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर देवां तो वो आर एक्स यानी छोटी पॉलिनोमियल यानी छोटी जी सैट ऑफ पॉलिनोमियल दे विच चला जाता। मतलब आई रिपीट, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल फील्ड ऑफ क्यूशेंट च लेना तो मेरे को एक डी मैं लभ सकदा कि जी डी एफ है वो आर एक्स नूं बिलोंग कर जाए। तो डी कौन आ? डी याद रखियो, डी तुहाडे कोल कौन सी? जिहड़े कोफिशिएंटां दे नीचे वालियां टर्मां सी वो सारियां दा प्रोडक्ट सी D0 D1 एंड DF। ठीक है जी। सो क्यूशेंट वालियां नीचे टर्मां दा प्रोडक्ट सी, सो साडे कोल उस फॉर्म दे विच याद। तो असी इस रिजल्ट नूं याद रखना सिंपल, असी जो कीता वो अंडरस्टैंडिंग लई सी, पर जो असी याद रखना वो आ रिजल्ट है। ये रिजल्ट की है? इफ एफ बिलोंग्स टू के वाई कौन आ? फील्ड ऑफ क्यूशेंट। अगर वो फील्ड ऑफ क्यूशेंट नूं बिलोंग करदा तो साडे कोल असी एक ऐसा नंबर लभ सकते हैं, केड़ा नंबर जी? डी नंबर। और वो डी नंबर जिहड़ा है वो किदां दा होएगा? एफ नाल मल्टीप्लाई करके वो आर एक्स यानी कि छोटी पॉलिनोमियल ऑफ रिंग्स दे विच जिहड़ा है वो शिफ्ट कर जाएगा। लो जी, इस थ्योरम नूं, इस रिजल्ट नूं जे आपां समझ पाए तो असी इस अगली थ्योरम नूं भी समझ लवांगे। ठीक है जी। जे सानू उस रिजल्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपां इनू भी समझ लांगे। सो फर्स्ट पार्ट, आर मैनू की दिता? UFD यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पहली गल। और के मैनू दिता फील्ड ऑफ क्यूशेंट ऑफ आर। ठीक है जी। ये साडे कोल फील्ड ऑफ क्यूशेंट आ गई आर दी। तो असी प्रूव की करना? असी प्रूव करना देन एनी इररेड्यूसिबल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। देखो पिछला असी प्रिमिटिव तक पुजे सी, हुण उस तो अगे चल रहे। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इन Rx, पॉलिनोमियल। ठीक है जी। पॉलिनोमियल इन Rx कोई भी असी प्रिमिटिव इररेड्यूसिबल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल लईए। याद रखना आपां कित्थों चल रहे सी, कित्थे तक पहुंच गए? इज आल्सो ए। ठीक है जी। आल्सो ए इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन KX बड़ा हुंदा फील्ड ऑफ क्यूशेंट, तो ये इररेड्यूसिबल हो जाएगी। इनू मैं डिफरेंट कलर दे नाल रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है जी। हुण दोनों च फर्क समझ लो। पहले दे विच तुहाडे कोल कौन आ? इररेड्यूसिबल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, और दूसरे दे विच तुहाडे कोल कल्ली इररेड्यूसिबल रह गई, यानी बड़े सैट दे विच शिफ्ट हुई तो वो साडे कोल ओदी एक कंडीशन या ओदी एक वैल्यू घट गई। ठीक है जी। सो असी प्रूफ करन जा रहे हैं। दिस इज प्रूफ RUFD के फील्ड ऑफ क्यूशेंट। सो ये बारे तो मैं तुहानू ऑलरेडी दस ही चुका है। ठीक। तो सब तो पहला मैं F लिया किहदे विचों? RX चों, और ये पॉलिनोमियल सानू किदां दे दित्ती? इररेड्यूसिबल। दूजा दिता
primitive polynomial, primitive polynomial, ठीक है जी। सो ये सानू गिवन है। प्रूव असी इररेड्यूसिबल करना फील्ड ऑफ क्वेश्चन, याद रखियो कि असी प्रूव करना इट इज इररेड्यूसिबल ओवर फील्ड ऑफ क्वेश्चन, फील्ड ऑफ क्वेश्चन च इररेड्यूसिबल। तो असी मान लिया इररेड्यूसिबल, सपोज कंट्राडिक्शन नाल चलिए, सपोज दिस f is reducible in kx। बड़े ध्यान, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रेक कर सकते हैं दो पॉलिनोमियल जिन्हां ਦੀ डिग्री ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ बड़ी है। तो f ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਤਾ g ਤੇ h ਚ, और g ਤੇ h किनों बिलोंग करेंगे, फील्ड ऑफ क्वेश्चन नो, k ऑफ x, ठीक है। वेयर डिग्री ऑफ g ये भी ग्रेटर देन 0 होएगी, एंड डिग्री ऑफ h ये भी ग्रेटर देन 0 होएगी। कुछ नहीं किया, सिर्फ असी डेफिनेशन अप्लाई की। केड़ी डेफिनेशन? असी डेफिनेशन अप्लाई की रिड्यूसिबल दी, रिड्यूसिबल दी डेफिनेशन अप्लाई किया, ठीक है जी। हुण रिमार्क यूज करन लगा, जे जी ते एच ये सानू की दिता के ऑफ एक्स, एक चीज याद रखियो, जी ते एक्स सानू के ऑफ एक्स दे विच दिता फील्ड ऑफ क्वेश्चन। तो सानू पता कि असी जेड़ा है देयर एग्जिस्ट साडे कोल डी एंड डी डैश असी लभ सकते हैं आर दे विच, डी एंड डी डैश असी आर दे विच लभ सकते हैं, सच दैट डी ऑफ एफ, डी ऑफ जी एंड डी ऑफ एच it belongs to r of x। हमने किया ना रिजल्ट कि साडे कोल अगर कोई भी जी एच के एक्स है तो d of g which is a d of g और d of h ये असी r x नू जेड़ा आ वो बिलोंग करवावांगे, d of g एंड डी ऑफ एच ये आर एक्स नू बिलोंग कर जाएगा। डी का पता ना कौन हुंदा सी, प्रोडक्ट, और इदा ही डी डैश का पता वो एच दे कोफिशिएंट का नीचे का प्रोडक्ट होएगा। सो ये असी जिहड़ा हुणे रिमार्क करके हटे हैं उहदे मुताबिक असी पॉलीनोमियल के एक्स दियां पॉलीनोमियल्स नू किहदे च एक्सप्रैस करता, आर एक्स दे विच एक्सप्रैस कर दिता ना। इस टर्म नू मैं d इंटू डी डैश नाल मल्टीप्लाई कर देना, जदों मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, क्योंकि d की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, d डैश की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। सो इनू मैं d डैश मैंशन करना, सो d डैश जदों मैं मल्टीप्लाई किया आई गेट d इंटू डी डैश इंटू साडे कोल किहदे बराबर आ गया f दे। So this can be written as d dash into gh and this can be written as dg, ठीक है जी, d dash into h। हाँ ध्यान नाल समझ लो, क्योंकि एलिमेंट किहदे आ, एलिमेंट साडे कोल हैगे ये dg, d ते d dash एलिमेंट किहदे आ साडे कोल r दे एलिमेंट्स। Now what is this? This is a, so this is a sum polynomial in Rx, r of x, क्योंकि f r दी polynomial सी Rx दी, तो d dash भी r दे एलिमेंट है, so it is a sum polynomial in Rx। और दूजे पासे
ਜਿਹੜੀ डी जी पॉलीनोमियल है ये भी R दी हो गई और D डैश H पॉलीनोमियल भी R ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੇ ਵਿੱਚ R ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨਾ DG ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ग्रेटर दैन 0 आ तो सानू पता किसी भी पॉलीनोमियल नूं हुण इहनूं पूरी नूं एक पॉलीनोमियल समझियो इहनूं भी पॉलीनोमियल समझियो किसी भी पॉलीनोमियल नूं असीं प्रिमिटिव पॉलीनोमियल च कन्वर्ट कर सकते हैं। किदां DG तुसीं लै लो अल्फा इंटू G1 और D डैश H ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ बीटा इंटू H1 वेयर ਸਾਡੇ ਕੋਲ G1 and H1 so these are primitive polynomial आगे गल समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये पुराना रिजल्ट है कि कोई भी पॉलीनोमियल आ उन्होंने असी आ कंटेंट बन जाता हुंदा याद होवे तां। तो किसी भी पॉलीनोमियल नूं असी लिख सकते हैं साडे कोल प्रिमिटिव पॉलीनोमियल च एक्सप्रैस कर सकते जे कर सकते हैं दिस वैल्यू विल बी सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। ਜਦੋਂ इक्वेशन नंबर 1 च सबस्टिट्यूट किया सो दिस वैल्यू विल बिकम D डैश इंटू F। वैल्यू पुट करिए अल्फा G1 इंटू बीटा H1 सो ये बन गया अल्फा बीटा इंटू G1 इंटू H1। ठीक हो गया है ना। जे तुहानूं याद होवे गॉस थ्योरम हुणे कीती वो किसी कि अगर दो प्रिमिटिव पॉलीनोमियल दा प्रोडक्ट करिए तां वो भी साडे कोल प्रिमिटिव पॉलीनोमियल हो जाती। गॉस थ्योरम कीती प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलीनोमियल्स आर अगेन प्रिमिटिव। सो इट मीन्स साडे कोल दिस G1 H1 ये साडे कोल उस थ्योरम की मदद नाल की बन गई प्रिमिटिव पॉलीनोमियल बन गई। समझ आ गई गल। प्रिमिटिव पॉलीनोमियल बन गई बाय गॉस। सो GAUSS ये पेपर चाणी थ्योरम गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम की मदद नाल प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलीनोमियल इज अगेन ए primitive. Also we know that this F is also a primitive. This is a primitive irreducible polynomial, so it is again primitive polynomial। ठीक है जी। क्लियर। सो मतलब आ भी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गई और इहदा राइट हैंड साइड भी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गया लैफ्ट हैंड साइड भी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गया। इहदा मतलब जिहड़े नाल कोएफिशिएंट्स लगे आ वो किदां दे होणगे एसोसीएट होणगे। सो इट मीन्स दिस D into D dash so this is associate to alpha beta। ये अल्फा बीटा नाल एसोसीएट होणगे। जे अल्फा बीटा नाल एसोसीएट होणगे सो अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज U into D dash where U belongs to R is a unit। क्योंकि साढ़े कोल अल्फा बीटा आ गया U D into D dash सो ये साढ़े कोल यूनिट बन गया। नाउ इफ I write this equation as equation number 2
Now substitute this value in equation number 2. जब मैं substitute किया तो मेरे को क्या find out हो गया? Left hand side ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ d into d dash d into d dash and this value is equal to left hand side ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ values ਆ ਗਈ d into d dash into f और दूजे पासे u d d dash और नाल साढ़े कोल की आ गया g1 ते h1 सो इस फॉर्म च आ गया ठीक है जी इस फॉर्म दे विच असी एक्सप्रैस करता क्योंकि इंटैग्रल डोमेन आ तो ये साढ़े कोल कैंसिलेशन ला दे नाल d ते d डैश कैंसल हो गए सो दिस f कैन बी रिटन एज u into g1 into h1 in rx सो असी rx च काम कर रहे हैं इदा एक्सप्रैस करता u सानू पता यूनिट है सो एदी डिग्री ऑफ u of g1 it is greater than 0 and degree of h1 is greater than 0 so what it means f is not a ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ greater than ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ डिग्री ऑफ ug1 greater than 0 आ गया और दूजे पासे डिग्री ऑफ h greater than 0 हो गया जद कि एक्चुअल च f सानू की दिता आ f सानू दिता इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ठीक है जी जे इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल दिता आ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ तो मैं ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਜੀ तो ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ तो इट इंप्लाइज डिग्री ऑफ ug1 इक्वल टू 0 होएगी ਜਾਂ डिग्री ऑफ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h1 0 होएगी जद कि बट डिग्री ऑफ ug1 भी पॉजिटिव है एंड डिग्री ऑफ h1 भी पॉजिटिव है ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ so which is contradiction सो जो असी मान रहे सी वो गलत हो गया और मान की रहे सी कि f साडे कोल रिड्यूसिबल पॉलीनोमियल आ ते जे गलत हो गया तो साडे कोल f किदां दी आ गई सो दिस इज ए इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल इन kx पॉलीनोमियल इन kx यानी कि फील्ड ऑफ क्वेश्चन दे विच ये साडे कोल irreducible polynomial आ गया सो विच प्रूव आवर रिजल्ट सो ये स्टेटमेंट याद रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट साडे कोल जिहड़ा अगे रिजल्ट करना है उस रिजल्ट दे विच ये स्टेटमेंट यूज होणगी ठीक है जी बेसिकली एज ए एप्लीकेशन साडे कोल ये यूज होणगी ठीक है जी आफ्टर दैट माई next question is so पहला पार्ट अगर मैं डिस्कस करन जा रहा दो पार्ट होंगे फर्स्ट पार्ट उससे ढंग दे नाल आर साडे कोल यूएफडी सो इफ this R so which is a unique factorization domain
और K है फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ R, ठीक है जी, फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ R। So then result number 1. So what is the first result? पहला ਆਪਾਂ डिस्कस कर लिए। So every irreducible element in R, कोई भी irreducible element ਅਸੀਂ R च लईए, is a prime element in K of X. Is irreducible element is R, prime element in R of X. तो ये रिजल्ट याद रखने पैने तुहानू। सो इत्थे इररिड्यूसिबल एलिमेंट आर दे विच आ और प्रूव की करना प्राइम एलिमेंट इन आर एक्स पॉलिनोमियल, ठीक है जी। लो जी, सो पहला मैं इररिड्यूसिबल एलिमेंट ले लिया आर दे विच और उन्होंने मैं प्रूव करना दिस इज ए prime element in Rx. So first let P belongs to R be a irreducible element. ਇਹਦਾ मतलब पता ना irreducible element ਦਾ कि अगर असी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट च रखिए आइदर फर्स्ट यूनिट या सैकंड यूनिट, प्रूव करना चाहते इन्हों प्राइम एलिमेंट कि आर एक्स। सो अजूम कर लो, अजूम P डिवाइड एफ जी और एफ ते जी, दिस इज ए एलिमेंट belongs to Rx, ठीक है ना। प्राइम प्रूव करना चाहते जा तो P F नो डिवाइड करे जा किनो डिवाइड करे G। बाय डेफिनेशन एफ जी कैन बी रिटन एज P, ए एलिमेंट आर दा, आ पॉलिनोमियल H फॉर सम polynomial H belongs to Rx। so ध्यान रखना भी एलिमेंट प्राइम किदे चा इररिड्यूसिबल किदे चा, इस चीज का ध्यान रखना। सानू पता किसी भी पॉलिनोमियल नू असी लिख सकते हैं D इंटू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, सिमिलरली G नू D डैश इंटू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स। So what is साढ़े कोल D डैश R दे एलिमेंट्स हो गए और F1 G1 प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गए, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल।
क्लियर। सो बेसिक जिहा रिजल्ट जिहड़ा असी यूज कर चुके हैं। और कंटेंट ऑफ एफ किहदे बराबर हुंदा डी आर दे, कंटेंट ऑफ जी ये हो गया डी डैश आर दे, और F1 का कंटेंट तो G1 का कंटेंट यूनिट हुंदा, जानी 1 नहीं मान लो कि उन्हों का कंटेंट साडे कोल 1 है या यूनिट है तो वो 1 हो जाता है। ना कंटेंट ऑफ H असी कंटेंट ऑफ H की गल कर लीए, ठीक है जी। सो साडे कोल F का भी कंटेंट आ गया और दूजे का भी कंटेंट आ गया, जी का भी। तो असी कंटेंट ऑफ H मान लीए कंटेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू सम अनदर नंबर स्मॉल l इंटू आर, ठीक है। हुण देखिए आर इक्वेशन की बन रही है, फिर आप इसका कंटेंट देखेंगे। एफ जी साढ़े कोल हो गई एफ इंटू जी, प्रिमिटिव च लिखिए जो प्रिमिटिव ये एच नू भी प्रिमिटिव च फिर तुहानू लिखना पैना, एच नू भी लिख लीए असी एच विच इज इक्वल टू एल इंटू एच वन, एफ वन जी वन एच वन भी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गई। सो तिना पॉलिनोमियल नू असी एक्सप्रैस करता। नाउ एफ जी विच इज इक्वल टू पी, सिंपल वैल्यू सबस्टिट्यूट करो ए दी और ए दी तिना दी, तो तुहाडे कोल डी पहले तो, डी डैश दूजे तो और एल तीजे तो, उस तो बाद एफ वन ते जी वन। क्लीयर हो गया जी? नहीं एफ वन जी वन नहीं, आप थोड़ा जा गलत लिख रहे, मैं दोबारा तो रिपीट कर देना। जदों साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई, क्लीयर हो गया, तो एफ जी दी वैल्यूज तो आप लिख सकते हैं एफ ते जी, ये तुहाडे कोल की बन गया डी इंटू डी डैश एफ वन ते जी वन, है ना, ये दी वैल्यूज बन गई। और पी एच ये तुहाडे कोल बन गया पी एल इंटू एच वन, ये बात दूजी वैल्यूज बन गई और दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं और नाल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स आ गए हैं। सो इट इम्प्लाइज डी डी डैश एफ वन जी वन विच इज इक्वल टू पी एल इंटू एच वन। क्लियर जी? हुण एफ भी प्रिमिटिव जी भी प्रिमिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज प्रिमिटिव, ये भी प्रिमिटिव। सो जेडे नाल है वो एसोसिएट हो जाएंगे। सो डी इंटू डी डैश एसोसिएट टू पी इंटू एन, यदा मतलब एक दूजे नाल अगर एसोसिएट हो गए तो इट इम्प्लाइज डी इंटू डी डैश विच इज इक्वल टू यू पी एल for some unit u belongs to r, ठीक है जी। ये साढ़े कोल वैल्यूज बन गई। हुण जे ये वैल्यूज बन गई तो इस वैल्यू नू अगर आप देखिए, सो व्हाट इज दिस p इज ए, p नू असी इस ढंग नाल लिख सकते। सो लैफ्ट हैंड साइड जेड़ा राइट हैंड साइड है उन्होंने p डिवाइड करता, तो p आल्सो डिवाइड लैफ्ट हैंड साइड, राइट। और p सानू किदां दा एलिमेंट दिता है, p d एंड d डैश साडे कोल r दे विच किदां दा आ, प्राइम एलिमेंट, क्योंकि सानू पता अगर r दे विच इररिड्यूसिबल एलिमेंट होवे तो P साडे कोल प्राइम R दे विच बन जाता, एज P इज प्राइम इन R, प्राइम इन R। सो R दे विच ते प्राइम होएगा,
जे R ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, so by definition of prime either P divide D or this P divide D dash. So very carefully, अगर P D ਨੂੰ divide करेगा या P D dash, it means P divide DF1 ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ F ਦੇ, और P divide D dash G1 ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ G ਦੇ. So it implies P divide F और P divide G, मतलब irreducible element ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ prime element ਬਣ ਗਿਆ Rx. So what we get P is prime element in Rx. So Rx ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट च मैं प्रूव करता कि P is a prime element in Rx. So second part, R सानू UFD दिता, K field of क्वेश्चन दिता, तो second part साडे कोल की आ गया. So second part नू सानू क्या स्टेटमेंट दिती है. सो पहला आपां स्टेटमेंट नू डिस्कस कर लीए. सो स्टेटमेंट है, अगर मेरे कोल इफ दिस f which is a primitive polynomial in Rx, so this is a primitive polynomial in Rx, polynomial in Rx, ठीक है जी, ये सानू दिता. And H is some polynomial in Rx, एक दिती primitive और दूजा साडे को simple polynomial, such that f divide h, ये साडे को ਉਹਦਾ दूसरा पार्ट है, f divide h such that f divide h in kx, यानी कि अगर फील्ड ऑफ क्वेश्चन दे विच डिवाइड करदा तां इट आल्सो डिवाइड f divide h in Rx. So R of x दे विच भी यह डिवाइड करेगा. क्लियर. सो अगर फील्ड ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड करता प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ना, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है जी. सो ये अपनी नेक्स्ट थ्योरम च सारे रिजल्ट यूज भी होने हैं, और उस तो बाद साडे कोल वैसे भी ये अपने आप च बहुत इंपॉर्टेंट है. लो जी, मैं इस टर्म तो स्टार्ट करने लगा. सिंस f divide h in kx, so ये kx ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहे हैं, kx डिवाइड कर रहे हैं. so h ਨੂੰ मैं एक्सप्रेस करूंगा into some element f into g, so where this g belongs to k of x. ये याद रखना, this belongs to k of x. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ऑलरेडी करके हटे हैं कि जे कोई पॉलिनोमियल फील्ड ऑफ क्वेश्चन च है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ rx ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. so there exists some d which is non-zero belongs to r such that dg belongs to r of x. ये जड़ा सी रिमार्क दे विच डिस्कस कीता सी, ये साडे कोल ओ टर्म आ गई. राइट, ये साडे कोल आ गया. नाउ दिस कैन बी रिटन एज dh f into d of g. d नाल मल्टीप्लाई करता
और साडे कोल इहदी वैल्यूज़ आ गई। अगर साडे कोल इस वैल्यूज़ आ गया, हुण असी बेसिकली की चाहते हैं कि जिहड़ा एफ एच नूं डिवाइड करे आर एक्स, एफ एच नूं डिवाइड तां करे पर दिस एलीमेंट जिहड़ा साडे कोल है वो आर एक्स नूं बिलोंग कर जे। एच साडे कोल सिंपल पॉलीनोमियल है, एच नूं मैं लिख सकदा किहदे च अल्फा इंटू प्रिमिटिव पॉलीनोमियल, और मेरे कोल जिहड़ा जी है एफ जी है उन्होंने भी असी एक्सप्रैस कर सकते हैं, उन्होंने कर सकते हैं जिहड़ी साडे कोल डी जी है, दिस आल्सो कैन बी रिटन एज बीटा इंटू जी वन। दीज आर साडे कोल अल्फा बीटा तो साडे कोल कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ गई, एच वन जी वन की आ गया एच वन जी वन। दिस इज ए primitive polynomial in Rx, polynomial in Rx। सो कन्फ्यूज नहीं होना इत्थे, सिंपल आ पॉलीनोमियल। हुण आपां ये पॉलीनोमियल तां पता कर लिया ना Rx च, तो नैचुरली इनू प्रिमिटिव पॉलीनोमियल च लिखांगे तो प्रिमिटिव पॉलीनोमियल Rx दी होएगी। इदां ही असीं H नूं लिख लिया और इन्हां दी वैल्यूज़ असी सबस्टिट्यूट कर देंगे। जदों सबस्टिट्यूट किया एफ नूं भी असी एक्सप्रैस कर सकते हैं, पर एफ क्योंकि ऑलरेडी प्रिमिटिव आ इस करके उन्होंने आपां लिखण दी लोड़ नहीं। नाउ दिस वैल्यू हियर एच दी वैल्यूज़, सो ये आ गया डी अल्फा इंटू एच वन लैफ्ट हैंड साइड, दूजे पासे एफ प्रिमिटिव आ, ये आया एफ फिर आया बीटा इंटू जी वन, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ कह लिए बीटा इंटू एफ जी वन। क्लियर हो गए जी। आ प्रोडक्ट प्रिमिटिव पॉलीनोमियल हो गई। क्यों? क्योंकि एफ गिवन दिता है, जी वन पता हैगी है और इधर एच वन प्रिमिटिव हो गया। जे प्रिमिटिव हो गया तो जिहड़े नाल कोफिशिएंट आ वो आपस दे विच एसोसीएट हो गए, यानी डी अल्फा is associated to beta, d alpha is associated to beta। अगर d alpha बीटे नाल associate हो गया सो मैं बीटे नू लिख सकदा d alpha into u, so where u belongs to r is a unit, तो मैं इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्रैस कर सकदा। जे एक्सप्रैस करता सो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन च जदों भी सबस्टिट्यूट करूँगा, इधर मेरे को आ गया डी अल्फा एच वन और दूजे पासे बीटे की वैल्यू डी अल्फा यू इंटू साढ़े को आ गया जी डी बीटे की वैल्यू पुट कर दी है, सो नाल आ गया जी इंटू एफ वन। दिस वैल्यूज आ गई, तो क्योंकि इंटेग्रल डोमेन च काम कर रहे हैं डी अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट एच वन विच इज इक्वल टू यू जी इंटू एफ वन। असीं इहनूं इस ढंग नाल एक्सप्रैस करता। अगर इस ढंग नाल एक्सप्रैस करता सो इट मीनस दिस एफ हजे एफ वन है, एफ वन साढ़े को आ गया, सो एफ वन डिवाइड एच वन, दिस वैल्यूज आ गई। अच्छा एफ नूं तां असीं एफ ही रखिया सी क्योंकि साढ़े को ऑलरेडी प्रिमिटिव सी, सो दिस एफ डिवाइड एच वन। क्लियर? इन जिहदे विच साडी लोड़ आ आर एक्स आर ऑफ एक्स और सानू पता एच वन डिवाइड कर रहा एच नूं, सो इट मीनस एफ डिवाइड h in r of x, so which prove our result। so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ क्या थ्योरम प्रूफ होगी ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾर्ट क्वेश्चन दिस ਇਹ डेफिनेशन डिस्कस ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
इस रिजल्ट नूं कीता, दिस रिजल्ट, ठीक है जी। फिर साडे कोल 19 क्वेश्चन, इफ आर इज यूएफडी की फील्ड ऑफ क्वेश्चन, क्लियर। तो कोई भी इरेड्यूसिबल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल लइए, या तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन के एक्स हो जाएगी फील्ड ऑफ क्वेश्चन दे विच, ठीक है जी। उस तो बाद अगे हुण जिहड़ी लेटेस्ट 20th क्वेश्चन कीता कि कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन आर, सो दिस इज ए प्राइम एलिमेंट ऑफ आर एक्स। और उस तो बाद साडे कोल आ गया इफ एफ बिलोंग्स टू आर एक्स, है ना, उन्हें कीता, और ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आ, और अगर ये एच नूं डिवाइड कर दी के एक्स च, तो ये आर एक्स दे विच भी डिवाइड करेगी। सो अगले लैक्चर दे विच असी डिस्कस करांगे कि अगर मेरे को आर यू एफ डी है, then every irreducible element of Rx R prime, ठीक है जी। तो R of X दे विच जिन्ने भी irreducible element होंगे ये प्राइम होंगे। और उस तो अगे जिहड़ी थ्योरम एग्जाम दे विच आनी है वो है कि अगर R UFD है तो R of X भी UFD होएगी, ठीक है जी। सो ये देखो हर साल आई हुई है, 1995 तो शुरू हुआ, 2005, so every year. So this is expected for examination. So remember that. So we are preparing for this theorem. Basically जिन्ने भी असी लेमने थ्योरम कर रहे हैं वो इस थ्योरम दे विच यूज होने सारे, और ये थ्योरम एग्जाम दे विच आएगी, राइट। सो ये असी नेक्स्ट लेक्चर च डिस्कस करेंगे।